داستان بیان کرنے آئی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کل رات کراچی ایئرپورٹ اور اس کے باہر ریاستی خفیہ اداروں FIA اور سندھ پولیس نے بحیثیت شہری میرے تمام بنیادی انسانی حقوق کو سلب کیا اور ہمارے ساتھ ناقابل بیان سلوک کیا گیا۔ ایک بین الاقوامی مشہور میگزین ٹائم نے مجھے اس سال دنیا کے 100 بااثر افراد کی فہرست میں شامل کیا اور مجھے نیو یارک میں ٹائم ایونٹ میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ اس ایونٹ میں شرکت کے لیے کل رات میری پرواز کراچی سے نیو یارک کے لیے تھی۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر تمام پروسیجر مکمل کرنے کے بعد امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے مجھے سفر کرنے سے روک دیا۔ جب میں نے وجوہات دریافت کرنے کی کوشش کی تو FIA کے ذمہ داران وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ بغیر کسی قانونی وجوہات کے مجھے 5 گھنٹے ایئرپورٹ پہ روکے رکھا گیا۔ جب پرواز ٹیک آف کر گئی اور ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو FIA کے خاتون افسر نے میرا پاسپورٹ لیا اور واپس دینے سے انکار کر دیا۔ 1 گھنٹے سے زائد وقت تک میں ان سے بات کرتی رہی، تب جا کر 1 گھنٹے بعد میرا پاسپورٹ مجھے واپس دیا گیا۔ جب ہم ایئرپورٹ سے گھر کے لیے روانہ ہوئے تو ایئرپورٹ سے 5 منٹ کی ڈرائیو پر دوبارہ ریاستی خفیہ اداروں اور سندھ پولیس کے اہلکاروں نے ہماری گاڑی روکی، جس میں سمیعین اور ہماری ایک اور خاتون دوست موجود تھی۔ گاڑی کو روکتے ہی انہوں نے ہمارے ڈرائیور کو گاڑی سے نکالا اور ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ گاڑی کی چابیاں نکال کر گاڑی بلاک کر دیا۔ گاڑی کے چاروں دروازے کھول کر ہماری سیٹس کے نیچے تلاشی لی گئی، مکمل طور پر گاڑی کی چھان بین کیا۔ جب ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ہمیں گاڑی سے باہر نکال دیا، ہمارے دوپٹے کھینچے گئے، ہمیں گالیاں دی گئی اور شدید ہراساں کیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے بیگ زبردستی کی، انہوں نے میرا پاسپورٹ، موبائل اور گاڑی کی چابیاں اپنے قبضے میں لے لی۔ ہم رات کے 1 بجے تک ایک سنسان چوراہے پر کھڑے تھے۔ جب وہ گاڑیاں آئیں، ان میں موجود افراد نے ہمیں مزید ہراساں کیا اور ہم نے خود کو غیر محفوظ سمجھ کر دیوار چھوڑ کر ایک ٹیکسی لی اور گھر پہنچ گئے۔ یہ ایک اذیتناک اور تکلیف دہ لمحہ تھا کہ اس ملک میں ہمیں محض انسانی حقوق کا کارکن اور بلوچ ہونے کی بنا پر جانوروں سے بھی بدتر سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ قابل احترام صحافی حضرات، کل جس طرح مجھے سفر سے روکا گیا اور ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ریاست پاکستان نے ہم سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے اور یہاں ہمارے لیے کسی بھی قسم کی انسانی حقوق موجود نہیں ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے پاس USA کا ویزا اور ایک بین الاقوامی میگزین کا دعوت نامہ تھا، لیکن کراچی کے ایک بین الاقوامی ایئرپورٹ پر مجھے 5 گھنٹے روکا گیا، سفر سے منع کیا گیا، ہراساں کیا گیا اور میرا موبائل فون، پاسپورٹ اور گاڑی کی چابی بھی لے گئے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ لوگ عام بلوچ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہوں گے۔ میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے ریاست اور اس کے تمام اداروں کو واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے ہتھکنڈوں سے ہم نہ تو خاموش ہوں گے اور نہ ہی بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر آواز اٹھانا بند کریں گے، بلکہ اس طرح کے اقدامات سے ہمارا حوصلہ اور زیادہ بلند ہوگا اور ہم مزید منظم ہو کر بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور بلوچ نسل کشی کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ میں انسانی حقوق کی تمام ملکی اور بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ کل ہمارے ساتھ ہونے والے واقعے سمیت بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر ریاست پاکستان کو جواب دہ بنائیں اور بلوچ قوم کی بنیادی انسانی حقوق کو محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ شکریہ۔ باہر کچھ جانا چاہ رہی تھی وہ بات ہی تھوڑا سا ایک مرتبہ پھر کر دیں، کیونکہ حالیہ جو حملہ ہوا ہے ایئرپورٹ پر اور اس کا الزام بھی جو اس کے بعد سے اور مجھے افسوس اس بات سے ہوتا ہے کہ اس چیز پر آپ میں سے کسی نے بات نہیں کی۔ پاکستان میں اس کے علاوہ بھی اور بہت سے مسائل ہیں، PTM پر بھی پابندی لگائی گئی ہے اور گزشتہ 2 دنوں سے میرے ساتھ اسلام آباد اور راولپنڈی میں جو ماحول ہے، آپ نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ اس کی مذمت کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، اور پاکستان میں جو ایک عام انسان ہے
करती हैं या नहीं करती हैं। मैं समझती हूँ कि हम मजलूम कौमें हैं और हमारे साथ इस तरह का सवाल करना आपके खुद के साथी होने के खिलाफ पर एक सवालिया निशान है। हम इस सवाल का जवाब बार बार नहीं देंगे, हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारी राइट को और उसको बिल्कुल ख़त्म करता है। और एक और बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ, हमने हमेशा अपनी इस कोलैप्स सोसाइटी का इल्ज़ाम पाकिस्तानी फोर्सेस और एजेंसीज को दी है, लेकिन उसके साथ साथ जो हम जैसे लोग हैं, जो हम और आप जैसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा खामोशी इख्तियार की, उन पर हमने कभी कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया। जो हक को हक नहीं बोलते हैं, गलत को गलत नहीं बोलते हैं और सच का साथ नहीं देते हैं, इसकी वजह, इस कोलैप्स सोसाइटी की वजह यही है। आपको मुझसे ये सवाल करना चाहिए था कि आपके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, जिस तरह सिर्फ मेरी पहचान या समी की मेरी पहचान ये बलूची कपड़े, उसकी वजह से हमें रोका गया, उसकी वजह से जिस तरह तमाम गाड़ियां जा रही थी और सिर्फ हमारी गाड़ी को रोका गया, जिस तरह पुलिस और जब यहाँ हो सकता है, कराची में हो सकता है, उस जगह में हो सकता है जहाँ पे मीडिया है, जहाँ दुनिया मौजूद है, तो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? आप मुझसे ये पूछे कि बलूचिस्तान में करंट स्टेट कितने जगहों पर लापता अफराद के लवाकिन धरना किए बैठे हैं। आप मुझसे ये पूछे कि बलूचिस्तान में गुज़श्ता एक महीने से कितनी मसलसुदा लाशें फेंक की हुई है। मैं आपको वो लिस्ट देने के लिए तैयार हूँ, मैं बिल्कुल देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि खुदा रहा ये मुज़ाहिका खेज सवाल हमसे ना पूछे। हमने इतना जगर है कि हम इन सब चीज़ों को झेल लेंगे और हम झेलने के लिए बने हैं, क्योंकि हम रोकेंगे नहीं। हमारी तहरीक को तकवीत और इस बलोच माँ ने दी है और इस औरत ने दी है और इस बलोच फर्जे ने दी है, जो अपनी ज़मीन में सिर्फ और सिर्फ अपने जीने का हक चाहता है। और वो चीज़ इतनी बड़ी है, वो हमें इतनी ताकत देती है कि आपके ये सवालात हमें कभी भी पीछे नहीं कर सकते। और ये बताइएगा कि सभी को भी जो है कुछ ऐसा खबर जो है बैलून जाने से रोका गया था, इसके फौरन बाद जो है जल्दी करो भाई, आगे बढ़ो, वो कोर्ट चली गई थी, अदालत से उन्होंने आपके साथ भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है, तो आप अदलिया जा रही हैं इस बारे? जी बिल्कुल, मैं अदालत की से रुजू ज़रूर करूँगी और उसके साथ साथ जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा पासपोर्ट और मेरा मोबाइल फ़ोन अभी भी सिंध पुलिस के पास है और उसके लिए भी मैं FIR जरूर दर्ज करने जाऊँगी और वो भी मुझे यकीन है कि वो FIR दर्ज नहीं करेगी और उसके खिलाफ भी मैं अदालत के पास जरूर जाऊँगी। हम जो जदोजहद लड़ रहे हैं, हम इन तमाम अदालतों के लिए भी लड़ रहे हैं जो इनकम्पिटेंट हो चुके हैं, जो अपना इख्तियार खो चुके हैं, जो सिर्फ इमारतें बाकी रह चुकी हैं, जिसके अंदर वो इख्तियार जो हुए हैं वो नहीं बची है, तो हम जरूर अदालत से रिव्यू करेंगे और हम चाहते हैं कि अदालत जरूर एक जिम्मेदार सतून होने की वजह से एक स्टेट का इस पर जरूर इख्तियारदार होने के साथ साथ फैसला जरूर करें। कारण मेरा सवाल ये है कि कल जब आप एयरपोर्ट पर पहुंची थी और ये सब वाक़या हो रहा था, आपने सिर्फ हुकूमत और बिलावल भुट्टो को खातिर करके कहा था कि आपके सूबे में ये सब कुछ हो रहा है। एयरपोर्ट के अंदर जो FIA कर रही है वो तो एक विफाक का मामला है, लेकिन जो एयरपोर्ट के बाहर आपके साथ जिस तरह से सलूक हुआ और वो भी आपने वहाँ पर पोस्ट किया, क्या उस वक्त से लेकर अब तक सिंध हुकूमत की जानिब से किसी भी शख्स ने आपसे रब्ता किया और इस वाक़े की मजम्मत की? जी बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली बात, सिंध पुलिस को किसने ये ऑर्डर दिया कि आप सिर्फ एक गाड़ी जिसमें 3 खवातीन बैठी हैं जाएँ, उन्हें हरासा करें, जाएँ उनको थ्रेट करें और उनके साथ वो रवैया इख्तियार करें जो जानवरों के साथ भी इख्तियार नहीं किया जा सकता। तो उस वक्त से लेकर अब तक हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया गया और हमने रब्ता करने की कोशिश भी की जो मिनिस्टर साहिबान है, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। अच्छा ये बता दें सरकार के शुरू से हम देख रहे हैं कि आप आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, आइन में रहते हुए फैसलों की बात करते हैं और ये इस मुल्क के अवाम के लिए शुरू के लिए बायस फख्र होना चाहिए था कि आपकी शख्सियत को देखकर टाइम मैगजीन ने आपको 100 ताकतवर तरीन खवातीन में शामिल किया और आपको मदू किया। तो क्या ऐसे मुज़म्मरात होंगे, क्या ऐसी बात होगी कि आपको जाने नहीं दिया गया, क्या इसके पीछे क्या मुज़म्मरात होगा?
देखिए, हम भी यही सवाल उनसे पूछ रहे हैं, और बलोच का हर बच्चा पैदा होते साथ ही उसे बोलता है कि मेरी ज़मीन में हज़ारों साल से यहाँ पे आबाद हूँ और वसाइल मेरे हैं, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आप मेरे जीने का इख्तियार मुझसे कैसे छीन सकते हैं। और हम यही कहते आ रहे हैं कि हम उस आइन और उस कानून की शायद बालादस्ती की बात कर रहे हैं जिसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो चुका है, जो लाकानूनियत लाई गई है इस सोसाइटी में, जो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स है। कोई एक राइट मुझे बताए, कोई एक तबका मुझे बताए, बलोच को छोड़ दे, कोई एक तबका मुझे बताएं जिसके राइट्स उसे मिल रहे हैं, उसे नहीं मिल रहे हैं। और हमें रोकने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि बलूचिस्तान में जो इनके जंगी जराइम है वो कभी एक्सपोज ना हो सके। बलूचिस्तान में मीडिया पर पाबंदी है, बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस पर पाबंदी है, बलूचिस्तान में अगर आप एक कुतुब मेला भी रखना चाहते हैं उसके लिए भी कर्नल साहब से इजाज़त लेनी पड़ेगी। बलूचिस्तान में ऐसी जगह भी है जहाँ लाइब्रेरीज की किताबें भी फौज जो है ना डिसाइड करती है कि कौन सी लाइब्रेरी में कौन सी किताब आएगी या नहीं आएगी। तो वो जो कॉलोनियलिज्म है उसको एक्सपोज करने से वो डरते हैं और हम उसी को एक्सपोज कर रहे हैं। हमारे पास बलूचिस्तान की वो कहानियां हैं, वो दर्दनाक कहानियां हैं, उसको बयान करने के लिए वक्त शायद हम नहीं कर सकते हैं। जिम्मेदारी से हम अफसोस होता है आज भी कि बलूचिस्तान की वो कहानियां, ये हमारी नाअहली है या ना गैर जिम्मेदारी है कि हमने कभी उनको मीडिया के सामने या दुनिया के सामने तरह नहीं ला सके। अगर हम वही ला दें, सिर्फ वो जो हो रहा है वो सच लेकर आ जाए दुनिया के सामने, तो वही काफ़ी है हमारे लिए। तो हमें रोकने का, इससे पहले सभी को रोकने का सबसे बड़ा मकसद उनका ये था कि बलूचिस्तान में जो ये अपने जंगी जराइम है, जो फौजी जर्नलों की जंगी जराइम है, वो कभी एक्सपोज ना हो सके। और वो बलूचिस्तान जो एक नो गो एरिया है, जो ब्लैक होल है इंफॉर्मेशन का, उसको उसी तरह रखा जाए। उसके लिए बस एक ही चीज़ रखा जाए कि बलूचिस्तान में सीपैक है और रेकॉर्डिंग है, वहाँ पे इंसान एग्जिस्ट नहीं करते। इससे पहले अगर सवाल से पहले मैं MIHRCP के जिम्मेदार साथी हैं काजी साहब, वो कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद अब सवाल की सेशन। साथियों, ये जो डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा को कल रियासी इदारों ने कराची एयरपोर्ट पर रोका, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर अफसोस का इजहार करती है और उसे इंतहाई तशवीश है कि कल जब डॉक्टर महारंग के साथ ये सलूक किया गया तो उस वक्त एक सवाल उठता है कि अगर डॉक्टर महारंग साहिबा का नाम ECL में था तो उन्हें आपने पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? आप उन्हें पहले इन्फॉर्म करते तो शायद वो एयरपोर्ट ना जाती, वो कोर्ट से रुजू करती और अपना कसूर पूछती और उसे डिफेंड करती। लेकिन रियासत ने माजी की तरह डॉक्टर महारंग को इस वजह से एयरपोर्ट आने दिया कि वो एयरपोर्ट पर उनकी तजलील कर सके। बिल्कुल उसी तरह कि रिसेंट पास्ट में अगर हम देखें, जिब्रान नासिर के साथ जो किया, समीदीन मोहम्मद बलोच साहिबा के साथ जो किया और दीगर इंसानी हकूक़ के कारकुनों के साथ जो कुछ रियासत करती चली आ रही है। देखिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि बलूचिस्तान और इस मुल्क के दीगर इलाके के जहाँ पर इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है, उसका हल सियासी तौर पर निकलना चाहिए और उसका हल सियासी जमातों को निकालना चाहिए, ना कि जंगी असलहे के ज़रिए, ना कि तशद्दुद के ज़रिए। साथियों, आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 15 डॉक्टर महारंग बलोच को, समीदीन मोहम्मद बलोच को ये इजाज़त देता है कि वो आज़ादी से किसी भी मुल्क में जाएं, इस मुल्क को छोड़ें और जब चाहें इस मुल्क में वापस आएं। रियासत ने उनसे ये आईनी हक छीना। दोस्तों, रियासत ने खौफ महसूस किया कि डॉक्टर महारंग जिस प्लेटफॉर्म पे जा रही हैं वहाँ वो बात करेंगी
यानी उन्होंने उनका आइन का आर्टिकल 19 के तहत उनके इजहार राय की आज़ादी का हक भी छीना। डॉक्टर मारहंग और समीर दीन मोहम्मद बलोच की गाड़ी को जब रोका गया तो रियासत ने दरअसल आइन को पामाल किया, कानून को पामाल किया, क्योंकि आइन का आर्टिकल 9 कहता है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। 14-15 सालों से हम इन्हें जानते हैं, इनकी नौजवान जिंदगी सड़कों पर प्रेस क्लब्स के बाहर गुजरी, कभी भी इन्होंने तशद्दुद का नारा नहीं लगाया। इन लड़कियों ने हमेशा बात सियासी रखी, आईनी रखी, कानूनी रखी, लेकिन जब जब इन पर और इनके साथियों पर तशद्दुद हुआ तो हम समझते हैं रियासत ने और रियासती इदारों ने गैर आईनी और गैर कानूनी काम किया। बहुत क्लियर है, देखिए ये लकीर बहुत बारीक सी है। ये लोग आपके घरों में हाथ नहीं डालेंगे कि जिनके बच्चों को आप अगवा कर लेते हैं। ये मासूम बच्चे जवान होकर आपके गाने नहीं गाएंगे कि जिनके बाप भाइयों को आप उठा के ले गए और फिर उनकी लाशें मिली और कुछ की तो आज तक 15-15, 20-20 सालों से कुछ नहीं पता। ये बहुत बारीक लाइन है इन पहाड़ों के दरमियान और इन सियासी लोगों के दरमियान, उन लोगों के दरमियान कि जिनको आप अपना दुश्मन गर्दानते हैं। लेकिन ये आज आपसे बात कर रहे हैं, ये बलोच आज आपसे बात कर रहे हैं, ये नौजवान पश्तून आज आपसे बात करना चाहते हैं, ये सिंधी बात करना चाहते हैं आपसे। लेकिन देखिए ऐसा ना हो कि ये वक्त दूर निकल जाए। आज जो पूरी बलोच कौम मारंग बलोच को सुनती है, आज जो पूरी पश्तून कौम पश्तून को सुनती है, मंजूर को, आज जो यहाँ पर सिंध में सिंध की बेटियां इस अदम तशद्दुद और रवादारी के हवाले से बात कर रही हैं, रियासती तशद्दुद के खिलाफ बात कर रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनके हाथ से ये निकल जाए। ये बॉल आपकी कोर्ट में है, यानी रियासत की कोर्ट में है, ये रियासती इदारों के हाथ में है। अब देखना ये है, हम तमाम शहरी इसका इंतजार करेंगे कि रियासत इसका जवाब कैसे देती है, ये सियासी जमातें इसका जवाब कैसे देती हैं। ये इन बच्चियों का कोई कसूर नहीं होगा। ये मेरे ख्याल में जिस तरह समी पिछली चौथी पेशी से हाई कोर्ट जा रही है, जिस तरह इसने डॉक्टर मारहंग ने कहा कि इसे भी यकीन है कि ना तो इसका पासपोर्ट ये वापस करेंगे ना ये FIR काटेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे ये साथी आखिरी वक्त तक जो है वो कोशिश करेंगे। हम यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तरह की तमाम तहरीकों के साथ जो अदम तशद्दुद पे यकीन रखती हैं, जो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती हैं, हम उनका साथ देंगे और बबांगे दोहल देंगे। ये हमारा भी आईनी हक है और ये इन तमाम शहरियों का भी आईनी हक है। बहुत शुक्रिया। पहला सवाल ये है, बलूचिस्तान में शेड्यूल एसपी का है, जिस तरह के वहाँ के एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनको हिरासत किया जा रहा है, उनको आपके मेंबर्स को भी हिरासत किया जाए, उस पर आपका क्या कहना है? और दूसरा सवाल ये कि लास्ट टाइम जब आपने ट्वीट किया था वो तो ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान की मीडिया पर, तो जिस तरह से लास्ट नाइट आपके साथ रियासत की वहाँ पर मीडिया की तरफ से कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आई। सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ को छोड़ दें, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट को आपसे वजाहत चाह रहे थे उन्होंने भी आपकी सपोर्ट में कुछ नहीं कहा। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो आपका सवाल फोर्थ शेड्यूल का है, देखिए बलूचिस्तान में राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ असेंबली, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, पीसफुल एक्टिविटी, उसकी बिल्कुल कदर नहीं। तो फोर्थ शेड्यूल उसका एक नया चेहरा है। फोर्थ शेड्यूल में उन लोगों को नाम दर्ज किए गए हैं जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, जो अमन की बात करते हैं, जो बलूचिस्तान में जो जारी नस्लकुशी है उसके खिलाफ बात करते हैं। इसके साथ साथ 1500 सरकारी मुलाजमीन को बीड़ा एक्ट के थ्रू सस्पेंड किया गया है और ये कहा गया है कि
बुनियादी तौर पर डराना, ऐसा करना जितने शेड्यूल के में शामिल हो गए वो एक हफ्ते में 3-4 मरतबा CPD के थानों में बुलाया जाता है विदाउट रिस्ट्रिक्शन, उनको हरासा किया जाता है, प्रोफाइलिंग की जाती है और एक प्रोफार्मा के जरिए उनको ये कहा गया है कि वो अपने घर से जब बाहर निकलेंगे तब भी वो पुलिस स्टेशन में बताएंगे, वो कहीं भी जाएंगे, बाजार जाएंगे या शहर छोड़ कर जाएंगे, वो पुलिस स्टेशन को बताएंगे। बाकायदा तौर पर उन पर निगरानी की जा रही है। उस निगरानी का मतलब यह है कि उनको इतना हरासा करना कि वो इसके बाद सियासी एक्टिविटी में कभी भी शामिल ना हो सके। आपका दूसरा सवाल, मुझे मैं यही कहती हूँ कि पाकिस्तान में मीडिया है ही नहीं। पाकिस्तान में मीडिया कारोबार के लिए बनाई गई है। पाकिस्तान की मीडिया अपने वो जो बुनियादी उसके असूल है उस पर कभी उन्होंने काम नहीं किया है। अगर यही मीडिया होती तो इसको ये नहीं करना चाहिए था कि आज 12 घंटे इस वाक़े को गुजर चुके हैं, वो आकर मुझसे ये पूछते। कोई भी मीडिया का साथी इतना डेयरिंग होता वो जाकर FIA से पूछता कि उन्होंने क्यों मुझे रोका और मेरा नाम किसी ECL में नहीं है। अगर वो एट द फर्स्ट प्लेस मुझे कोई भी मुझे रीज़न बता देते कि उन्होंने मुझे क्यों रोका है, तो मैं एक शहरी होने के लिहाज से मेरे ख्याल से मैं उसी कोर्ट के नोटिस को या कोई भी नोटिस को मेरे हाथ में थमा देते तो मैं उसको उठाकर एयरपोर्ट से बाहर निकल सकती थी, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। और सहाफ़ी हज़रात इस पूरे सोसाइटी में किसी को ये नहीं